देखिए, first of all, learn one thing. Cation of strong base and anion of strong acid are spectator ions. If I talk about NaOH, what is the cation of NaOH? Na plus. What is the anion of HCl? Cl minus. Cl negative. Both are what? Spectator ion. Sir, हाँ सर, हाँ बताइए. sir, have you shared the screen? Didn't share the screen. Let me check. ठीक है. तो first thing learned today, cation of strong base and anion of strong acid are spectator ion. If I talk about NaOH, just if I talk about NaOH, the cation of NaOH is what? Na plus, and the anion of Yes. HCl is what? Cl minus. Both are spectator ions. So cation of strong base and anion of strong acid are spectator ion. There is no use of it throughout the chapter. Spectator ions के कोई use नहीं है. Now, when strong electrolyte, NaOH is what? Strong base and strong electrolyte. Strong electrolyte means alpha is 1. HCl is strong base, acid. strong acid. Again strong electrolyte, alpha is 1. NaCl, salt. All salts are strong electrolyte. Alpha is 1. So all these three will be completely dissociated in the solution. So NaOH will exist in Na plus and OH minus form. HCl will exist in H plus and Cl minus form. And NaCl will exist in Na plus and Cl minus form. If you check the left and right hand side, the ions, the spectator ions got cancelled. Cancelled this. What is remaining? H plus and OH minus giving what? H2. So whenever any strong acid, whenever any strong acid and strong base will react, Salt plus water. it always means, nahi beta, it always means it is what is reacting. H plus OH minus. This is the most important thing for today's lesson. Whenever strong acid and strong base will react, it always means H plus and OH minus will going to react. It means whatever strong acid is given to you, mixture of acid, single strong acid, whatever, it means first of all you have to obtain the values of H plus from that particular acid or acid mixture. Similarly, strong base, say you have to obtain what? OH minus, and then they will combine to form H2. So here it is written mixture of strong acid and strong base. So we are mixing strong acid and strong base. Whenever you mix strong acid and strong base, you have to do first acid base reaction between them, then find the pH of obtained final solution. It means if I take a strong acid, I will get H plus. If I take a strong base, I will get OH minus. When they will react, it depends on the number of equivalents. If H plus equivalents is more than OH minus, then what will happen? Solution will be acidic. If OH minus equivalent is more, then it will be basic. If both are same, then Neutral. it is neutral. Very simple. That's the basis of this section, of this part. फर्स्ट डू एसिड बेस रिएक्शन. अगर आपने मिक्सचर में एसिड और बेस मिलाया तो पहले रिएक्शन कराना ही है, फिर हम किसी फॉर्मूले रिलेशन के बारे में सोचेंगे. अब बड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आई हैव गिवन यू द कंटेंट. एसिड का नॉर्मेलिटी Na, वॉल्यूम Va, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड क्या हो जाएगी? NaVa. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस भी क्या हो जाएगी? NaVa. NaVa. क्योंकि एसिड का जो नॉर्मेलिटी होता है,
एसिड का जो नॉमिनेटिव होता है वो H प्लस का क्या होता है? मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी। पढ़ाया था। मोलैरिटी ऑफ H प्लस क्या होती है? नॉमिनेटिव ऑफ एसिड। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मोल्स। सिंपल है। यस सर। मोलैरिटी ऑफ H प्लस क्या होता है? नॉमिनेटिव ऑफ एसिड होता है। चलिए बेस के लिए लिख देंगे NaNbBb. The reaction will be H plus and OH minus giving H2O. If number of equivalents of acid taken is more, that is final solution is acidic. Number of moles of H plus from strong acid is more. What is NaBA? Number of moles of H plus. What is NbBb? Number of moles of OH minus. Whichever is more, that will dominate. So NaBA minus NbBb. Remaining amount of what? H plus. है कि नहीं? दोनों Yes, के sir. जो इक्वल मोल्स कंज्यूम हो गया, जो रिमेनिंग होगा वही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का पीएच. And base will be limiting reagent because the base is less. Number of no OH minus will be left from the base. H plus mixture is NaVa minus NbBv upon V final. Very simple. What is V final? Total volume plus you can also add some water. Case second case, if number of equivalents of base taken is more, number of moles of H plus from strong acid is less than the number of moles of OH minus, then acid will be the limiting reagent. No H plus will be left out. Solution will be basic. No H plus from acid is left out. Solution H plus होगा because water is always there, है ना? No H plus from acid is left. Acid के सारे H plus खत्म हो गए हैं. Water का तो रहना है यार. OH minus mixture क्या हो गई? NbBb minus NaVa upon V final. pH निकाल लेंगे, फिर pH निकाल लेंगे. If number of equivalents of acid and base are equal, that is both acid and base completely consumed and solution is neutral. Yes. So three cases there for strong acid and strong base. ठीक है? कोई डाउट? No, sir. ठीक है. अब आप बोलोगे सर H प्लस मिक्सचर को क्या करेंगे? डेफिनेटली H प्लस मिक्सचर में आप वही चेक करोगे. अगर ये 10 पर -6 से ज्यादा है तो pH वही निकाल लेंगे. अगर 10 पर -6 से कम है तो वाटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. समझ गए? हमेशा Yes, sir. हमेशा से. ये थ्योरी नोटबुक में लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. कहाँ तक लिख ली थी आपने? पेज नंबर 25 तक बोला था आपने. अच्छा, क्वेश्चन लिखा? ये क्वेश्चन सारे लिखे? हाँ सर, सॉल्व नहीं किया. हाँ सॉल्व करो. अभी सॉल्व करो. देख अब डिस्कशन भी कर देंगे क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे एटलीस्ट फर्स्ट दोनों तो करिए. वी विल डिस्कस इट. तो जो पढ़ाई की उसको क्वेश्चन में ही प्रूफ करना है ना कि हमने पढ़ लिया है. तो लर्निंग क्या है कि जब भी एसिड बेस को मिक्स करें आप तो पहले उसमें आप रिएक्शन कराएं, फिर चेक करें क्या बचा हुआ है, फिर उस पर हम कोई भी केस जो हम पढ़ते जा रहे हैं 1 बाय 1 उसको फिट करा देंगे उसमें. इसलिए बार बार आपको पढ़ के आने के लिए कहते हैं. कंप्लीट कीजिए दोनों क्वेश्चन, कंप्लीट कीजिए फर्स्ट का पार्ट. डिस्कस कर लेते हैं. कैलकुलेट द पीरियड फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट तो 10 into 0.01 HCl का और इसका 20 into 0.01 into क्या होगा? Into 2. 2 बिकॉज COH का फैक्टर 2 होता है. कौन बड़ा है? सर वो इससे बड़ा आएगा तो NbVb माइनस NaVo करना. तो OH माइनस शुड बी क्या हो जाएगी? 0.01 into 2 into 20 minus 0.01 into 10 upon सर बोलो टोटल वॉल्यूम 50 हो जाएगा. 50. It will be what? 4 minus 1 0.4 ना? Yes, sir. 0.4 0.4 minus 0.1 upon 50. 0.1 upon 50, that is 0.3 upon
0.3 by 50. तो 3 upon 0.06. तो 6 upon 1000. 6 into 10 power minus 3. तो POH will be minus log 6 into 10 power minus 3. It should be 3 minus log 6. log 6 क्या था? Log This. 2 plus log 3. तो 3 minus log 2 is 0.3. Log 3 is 0.48. Yes, sir. तो 3 minus पॉइंट यही होगा ना? Yes, sir. आ रहा है 2.22. इतना ही कुछ आ रहा है. Yes, sir. 2.22 आ रहा है. ठीक है. सेकंड पार्ट आया. सर फर्स्ट पार्ट ही करा था. सेकंड पार्ट भी कर लो. दो अलग अलग केस दे दिया ना, इसको कुछ नहीं, सिमिलर ही हैं दोनों.
सर आंसर 2.398 है. 2.39. यहीं पे बता देते हैं, कुछ है नहीं इसमें. क्या होगा? 0.01 मोलारिटी है, इंटू 2 कर देना, नॉर्मलिटी Into हो जाएगी 2 20. into 2. फिर यहाँ पे 20. 0.01 इंटू 20 कौन बड़ा है? सर डेफिनेटली वो दिस. H2SO डिवाइड बाय क्या होगा? 50. डिवाइड बाय 50 हो जाएगा सर. ये क्या देगा? H प्लस मिक्सचर. इसी से आप डायरेक्टली पीएच निकाल लेंगे. ठीक है ना? यस सर. अब देखिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करिए. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी. हाउ मेनी ग्राम of HNO3 should be dissolved in sufficient water to get 5 liter of aqueous solution of pH 2.7. Very simple question. Very simple question. Give a try on this. Equal volume of pH 4 and pH 2 solutions of HCl are mixed. Find pH of mixture. When volume of 2 molar 0.2 molar HCl solution should be dissolved diluted what volume of 0.2 molar solution should be diluted to 500 ml to get a solution of pH equal to 4.3. For 100 ml of HCl of pH 2 and 200 ml of NaOH of pH 12 are mixed. Calculate pH of resulting mixture.
सारे क्वेश्चन लिखिए, गिव एन अटेम्प्ट। वो जो रिमेनिंग दोनों क्वेश्चन है वो घर पे ट्राई करिएगा, कुछ नहीं है, ये तीनों करिए, सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बट आई वांट टू डिस्कस विथ यू। सिर्फ आपकी सॉल्विंग सॉल्विंग एप्टीट्यूड काम आएगी, व्हाटएवर थ्योरी हैज बीन डिस्कस्ड वो सफिशिएंट है। देखिएगा, पहला पहला कामना सब अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, बोलो। जैसे पीएच क्या दिया हुआ है 2.7, तो H प्लस क्या होगा, निकाल पाओगे क्या? व्हाट इज पीएच? पीएच इज व्हाट? So 10 raised to Negative minus logs. 2.7. ठीक, 2.7 होगा, log, sorry, H plus will be 10 power minus 2.7. You can write this as 10 power minus 3 into 10 power minus, क्या लिख सकते हैं, 10 power plus 0.3 लिख सकते हैं ना? Yes, sir. And this can be written as ये कैसे किया बताइए? log 2 क्या होता है? 0.3, 0.3. तो 10 power 0.3 क्या हो गया? 2 ना, Yes. क्योंकि बेस क्या है इसकी? Base 10 है. बेस 10, तो वही हमने यहाँ यूज कर लिया, तो H प्लस की वैल्यू 2 into 10 power minus 3 मिल गई। तो H प्लस मिल, अच्छा कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे H3 है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी तक वैसे भी आपको वीक एसिड स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो H प्लस फ्रॉम HNO3 विल बी सेम बिकॉज दोनों का फैक्टर क्या है 1, क्या हो जाएगा? 2 into This, 10 to the power minus. तो मोलैरिटी मुझे मिल गई, और मोलैरिटी मिल गया तो मोल्स क्या होंगे, बोलो? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? 5 liter. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई हाई फाई थ्योरी नहीं, लेकिन प्यारा क्वेश्चन। 10 पर माइनस 2, तो मास ऑफ HNO3 क्या हो जाएगी? 10 पर माइनस 2 इंटू मोलर मास 63 होती है इसकी, 0.63 ग्राम। सेकंड वाला भी काफी आसान है नितिन, बहुत आसान है। सर एक्चुअली में उधर 10 to the power minus 2.7 आया, उसके बाद क्या करने का था वो नहीं समझ. समझ गया मैं, लॉग का ही दिक्कत आ रहा होगा ना, तो ये हैंडलिंग Yes, दिक्कत sir. हो गई, तो लॉग को हैंडल करना सीख लिया आपने। तो वी आर नॉट लर्निंग केमिस्ट्री, वी आर लर्निंग व्हाट? Mathematics. मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग टेक्निक देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH equal to 4 and pH equal to 2 solution of HCl or mixed, find pH of mixture। तो आपको दो अलग अलग HCl सॉल्यूशन का मेथड तो पता है ऑलरेडी। इफ आई टेक अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला क्या था? समेशन NiVi
अपॉन वी फाइनल था ना, H प्लस की वैल्यू, यस बट वो यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मोलैरिटी है ही नहीं पता, पर निकाल सकते हैं। अगर pH 4 है तो H प्लस की वैल्यू क्या होगी? 10 to the power minus यहाँ पे H प्लस की वैल्यू क्या होगी? 10 to the power 10 minus to the power minus 2. तो बेसिकली वी हैव HCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन के मुझे वॉल्यूम पता है, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम V है। अब H प्लस फ्रॉम मिक्सचर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? N1V1 अपॉन N1 V1 N1 upon प्लस सॉरी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V फाइनल। 10 पर माइनस 4 इंटू क्या करें? 2 V V। रहेगा 10 पर माइनस 2 इंटू V अपॉन क्या हो जाएगा? upon V final 2V, है ना? क्या वैल्यू आ जाएगी? Yes. 1.01 अपॉन 2 10 पर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.05 इंटू 10 पर माइनस 3 आ जाएगा। फिर आप pH निकाल लेना। अब ये जो वैल्यू है वो तो 10 पर माइनस 6 से ज्यादा है, 10 पर माइनस 6 से ज्यादा है तो क्या करनी पड़ेगी? वाटर को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली pH क्या हो जाएगी? माइनस लॉग negative log of 5.05 into 10 to the power minus कुछ टफ था क्या? नहीं बताओ, ट्रिक क्या थी? No, pH sir. 4 से मुझे HCl का कॉन्सेंट्रेशन, उस pH 4 एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का pH है, तो उसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, फिर वो बेसिक फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है, ठीक है ना? हेलो, yes sir. हो गया। अब थर्ड फोर्थ फिर से आप ट्राई करिए। बेसिकली तो हैंडलिंग इसमें करनी है। 1.01 कैसे आया? 1 पॉइंट, अरे वो कुछ नहीं, 10 पर माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पे 0.01 रहेगा। 10 पर माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये 1, यहाँ पे क्या होगा? 10 पर माइनस 2, minus 10 पर 2 माइनस 2 क्या होती है? 0.01, 1 प्लस 0.01 क्या हो जाएगा? 1.01। 1. मैथमेटिक्स बेटा, कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पे what volume of 0.2 molar solution should be diluted to 500 ml to get a solution of pH 4.3? pH कितनी है? 4 पॉइंट, 4.3 इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 0.7। yes तो H प्लस क्या होगा डायरेक्टली बताओ? H प्लस का फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? so 10 to the power minus 5 माइनस 5, into 10 to the power 0.7 वेरी गुड, 0.7। अब 0.7, ओके, 10 पर 0.7 क्या लिख सकते हैं तो उसको बताइए। Sir, 5. 5, वेरी गुड। 0.699 ये बता दिया आपने, दैट इज वेरी गुड थिंग। ये हो गया हमारा। अब करनी क्या है? ये तो pH H प्लस निकाल लिया ना, ये नए सॉल्यूशन का 4.3 pH निकाल लिया, मतलब HCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। yes sir. तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं, सॉल्विंग इसलिए तो सॉल्विंग की जाती है, अदरवाइज क्या था मुझे? जैसे नया वाला, अब क्या लगा दें? M1V1 इक्वल टू इनटू डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, डाइल्यूटेड लिखा है इंग्लिश में, तो नए सॉल्यूशन का क्या है? 5 इंटू 10 पर माइनस 5। तो अगर पुराना मुझे नहीं पता, सॉरी वॉल्यूम नहीं पता ना, तो 0.2 इंटू V1 should be equal to
5 into 10 power minus 5 into क्या 500. So from this V1 निकाल सकते हैं 125. नहीं कुछ गड़बड़ है शायद. कितना आएगा देख बताओ तो. So 125 into 10 to the power minus 3 आ रहा है. 125 into 10 to the power minus 3. हाँ ठीक है. नेक्स्ट वैसे ही करना है. ट्राई करिए. कितने हुआ फोर्थ वाला.
सर कर रहा हूँ मुश्किल जा रहा है, सर, वो प्रॉब्लम लॉग में पढ़ रहे हैं। मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ रही है। pH 2 का मतलब क्या ले लेंगे बताइए? 10 पावर माइनस 2 तो 10 मोलर। पावर 10 -2 मोलर और उसका 10 टू द पावर -12। गलत, मुझे NaOH का निकालना है ना। pH तो ठीक है, 10 पावर माइनस 2 आएगा, 10 पावर माइनस 2 मोलर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें तो NaOH का निकालना है ना। तो pH क्या हो जाएगा? -2। -2 हो जाएगा ना। pH एंड pOH का सम क्या होता है? नॉट pOH, OH माइनस। रुकिए थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, दोनों दोनों लेवल पे आते हैं और कोई टफ नहीं है। सिंपल। HCl के लिए pH पता है हमें 2, यस, तो H प्लस क्या होगी? 10 10 पावर पर माइनस 2 मोलर, कोई दिक्कत नहीं। H प्लस 10 पर माइनस 2 मोलर होगा तो HCl का भी मोलरिटी क्या होगा? कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेम होगा। NaOH pH is NaOH सॉल्यूशन का pH है 12। 12, तो pOH क्या होगा? 2। OH माइनस क्या होगा? 10 पर माइनस 2, तो NaOH क्या होगा? 10 पावर -2। तो बेसिकली हमें HCl और NaOH का मोलैरिटी दिया बेटा, कुछ नहीं दिया। अब क्या होगा, ये कौन सी केस हो गई? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस बेस। मिक्सचर, और कोई केस है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर हो गई, सिंपल। समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर हो गया। अब फिर से वही, स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है? 10 पावर माइनस 2, वॉल्यूम 100 ml, एन फैक्टर 1, स्ट्रॉन्ग बेस 10 पावर माइनस 2, 200 ml, 200 एन ml फैक्टर एंड क्या हो गई? फैक्टर 1। 1। तो ज्यादा कौन होगा? इक्विवेलेंस निकालेंगे तो ज्यादा 10 SB पावर होगा। माइनस 2 इंटू 1 इंटू 100 मोर देन 10 पावर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 200। तो डेफिनेटली क्या निकलेगी? क्या फॉर्मूला लगेगा? NB NBVB VP। माइनस एन कुछ भी पढ़ा है वो से एसिड। बाहर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या नितिन? एक भी बाहर नहीं पूछ रहा। नो और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा स्लो। इसे स्लो नहीं हो सकता, सिंपल है, आप ये समझ लो। और इसीलिए सिर्फ आपसे मैं हेल्प मांगा था कि हार्डनेस ब्लॉक को पढ़े खत्म करिए, छोड़िए मत। क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। कोई टफ है तो टफ को भी हैंडल करनी है, इजी को निपटाना है। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 300। सो 10 टू द पावर -2/3 आ रहा है। हम्म 10 टू द पावर -2/3। हाँ, एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे। 10 पर माइनस 2 इंटू 100, 100/300। तो आ जाएगा 1/3 इंटू। तो पीओएच क्या हो जाएगा फाइनल? माइनस लॉग ऑफ दिस। तो 1/300 हो रहा है ना। सर वो 100 से कैंसिल होगा। 200 माइनस 100, 100 अपॉन। गलत क्या गया यहाँ पे? सर सही है। 10 टू द पावर -2 को कॉमन लिया तो सर 200 माइनस 100 आएगा, तो 100 ही हो जाएगा और अपॉन 300 है। तो ठीक है ना, यस सर। इसको अब लॉग ले लेंगे। इसका लॉग लेना तो आसान है। माइनस लॉग 1/3 माइनस लॉग 10 पर -2। माइनस लॉग 1/3 का मतलब क्या हुआ? लॉग 3। क्या आ गया? सर 2.4 आ रहा है।
2.48। log 3 की वैल्यू क्या है? 0.477 या 477 कर लो। सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। फिर पीएच क्या होगा? 14 माइनस, निकाल लेंगे। ठीक है, यस एक छोटी सी क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड pH of 10 liter of 10 molar NaCl solution। बताइए। तो 7 होगा क्या? वेरी गुड। क्यों, कैसे पता चला? सर ये NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रल बन जाएगा वो, तो 7। मतलब न्यूट्रल ही है ये, हाँ है वही ना? सर। मतलब इसका जो कटायन है वो क्या है? स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर और आयन जो अनायन है वो भी क्या है? स्पेक्टेटर। मतलब कोई काम स्पेक्टेटर इनका नहीं नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। उसका पीएच क्या हो गई? 7। अब आते हैं वीक कंपोनेंट पे, वीक पे आ जाते हैं। देखिए, मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक वीक एसिड, consider an aqueous solution of weak acid Ha of concentration C and acid ionization constant Ka। Ha क्या होगा? टूटेगा H प्लस Na माइनस में। अब देखो ये बिल्कुल ना, जो भी हम लिखने वाले हैं ना, वो बिल्कुल Ba जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल उसी का रिजल्ट होगा। देखिएगा, अब जो भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ा वो बेस के लगा देंगे, जो भी वीक एसिड का पढ़ेंगे वीक बेस का लगा देंगे, वैसे ही लगा देंगे। गया कहाँ वो क्वेश्चन बीए वाला? हाँ देखिए, डाइल्यूशन लॉ, बी रूट के बी प्लस ए माइनस बना, यहाँ पे कांस्टेंट के लिया, सी लिया, सी माइनस एक्स लिया, सी माइनस सी अल्फा लिया, वही सब चीजें वहां रिपीट होने वाली है। समझ गए? ये पूरा जो कॉपी, पूरा जो सेक्शन है वहां पे आ जाएगा, क्योंकि बी ए वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक एसिड भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बिल्कुल सब कुछ सेम होगा। तो देखिए, एच ए गिव्स एच प्लस एन ए माइनस, ऐसा। ये कौन सी एसिड हुई? मतलब ये अगर दोनों रिजल्ट सेम है, एच ए गिव्स एच प्लस एन ए माइनस, एच ए प्लस एच टू गिव्स एच थ्री प्लस एन ए माइनस, तो ये कौन सी एसिड हुई? एक मिनट रुकिए।
ये कौन सी एसिड हो गई? ब्रोमोस्टेट और प्रोटॉन। और ये कौन सी एसिड हो गई? अरेनियस एसिड। आर्एनएस। बट मेथड सेम होने वाला है, कुछ खास नहीं करना है। के क्या लिखा? H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए, H3O प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए, बिकॉज H3O प्लस एंड एच ए क्या होती है? सॉरी, H प्लस एंड H3O प्लस क्या होती है सॉल्विंग के टाइम पे? सेम हो जाती है। आर सेम, द कॉन्सेंट्रेशन विल बी टेकन एज सेम। तो वही सी लिया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब सी का सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया, बोलेगा फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। तो 0.1 मोलर क्या है? सी है, C माइनस एक्स और C माइनस सी अल्फा। C माइनस सी अल्फा को और क्या लिख सकते हैं? C इंटू 1 माइनस 1 माइनस अल्फा। अल्फा। तो K इक्वल टू वही लिखा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। अल्फा, अगर अल्फा लेस देन 1 है, जनरली 0.05 लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 0.1 ले लिया, 0.1 लेना चाहिए एक्चुअली, 0.01 लेना चाहिए, पर ठीक है चलता है। तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। के क्या लेंगे? सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस अल्फा को अगर 1 ले लिया तो के बिकम्स व्हाट? सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर के बाय सी। एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा, सी इंटू रूट अंडर के बाय सी। सिंप्लीफाई किया तो सी के आ गया, है ना? बताइए, सी के आ गया तो पीएच निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस लॉग एच प्लस लिखेंगे, माइनस लॉग एच प्लस लिखिएगा, माइनस और माइनस लॉग एच थ्री प्लस लिखिएगा, एच प्लस H3O प्लस इक्वल टू H प्लस, है ना? यस। तो माइनस लॉग ऑफ रूट अंडर सी के लिया, रूट के मतलब हाफ होता है तो हाफ बाहर आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग सी। व्हाट इज माइनस लॉग के? पी के। माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग इज व्हाट? पीक ऑफ समथिंग लिखा। यस। तो पीएच का फॉर्मूला सिंपली क्या आ गया? माइनस हाफ इंटू पी के माइनस लॉग सी। वेरी सिंपल। अगर वीक एसिड दिखा तो वीक बेस दिखेगा तो क्या कर लोगे? यहाँ पे पीओएच करोगे, यहाँ पे पीके भी कर दोगे, इतने डिफरेंस आएगा। लेकिन अल्फा शुड बी व्हाट? लेस देन 0.1 या 0.05 कम होना चाहिए। तो वो चेक कैसे करोगे? तो के और सी गिवन रहेंगे, फट से अल्फा निकाल लो। अगर अल्फा 0.05 से कम आया, 0.21 से कम आया तो हमारा मेहनत सही है, फटाक से फॉर्मूला लगा देंगे पीकेएच पीएच वाला। पर अगर अल्फा 0.1 से ज्यादा आ गया इस फॉर्मूले से, तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इफ 0.1 से ज्यादा है तो k cannot be taken as what? C alpha square, because 1 minus alpha को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखी। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तो x निकलेगा, है ना? यस। तो x ही क्या होती है? x किसकी वैल्यू होती है? h प्लस की, है कि नहीं? x किसकी वैल्यू यस। होती है? h प्लस की वैल्यू एच होती है। प्लस। तो डायरेक्टली मुझे वैल्यू निकल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और यदि फिर अल्फा निकाल लो, फिर अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? c से, तो x हो जाएगा। दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। जब अल्फा 0.1 से कम ना आए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0.1 से कम ज्यादा कैसे चेक करोगे? यूज दी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला डायरेक्टली, बिना सोचे समझे कि अल्फा कम है ज्यादा। अल्फा कम होगा तभी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट बिना सोचे समझे पहले आप ये लगा दो। अगर 0.1 से कम आ गया तो हमारा मेथड सही है, और 1 से कम नहीं आया तो फिर से मुझे ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, और इस प्रोसीजर पे क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। आएंगे भी तो कर लेंगे, लेकिन नहीं के बराबर आते हैं। क्लियर है नितिन? यस। फिर क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच फॉर 0.1 मोलर CH3COH। तो 0.1 मोलर CH3COH में आप अल्फा चेक कर लो पहले, सबसे पहले फटाक से, K अपॉन C। K कितनी है? 2 इंटू 2 into 10 to the power minus 5। और 0.1, उसको सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए? जो भी आएगा, और 0.1 और 10 पावर माइनस 5 क्या हो? 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 2 हो गया, और 2 का रूट क्या होगा? 1.414, रूट 1। तो 0.01 आ गया ना, यस। which is less than what?
0.05 या 0.05 0.1 कम है, तो मेरा मेहनत सही है। तो डायरेक्टली इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ हाफ टाइम्स पीके पीके माइनस माइनस लॉग सी, लॉग सी। सिंपल। तो पहले पीके निकाल लीजिएगा, फिर पुट कर दीजिएगा फटाक से, सी सर तो दिया पता ही ही गया है, ना 4.7। वो तो हम निकाले हैं, क्वेश्चन में दे देंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, दे भी सकते हैं डायरेक्टली, के दे सकते हैं फिर पीके दे सकते हैं, समझ गए होते हैं, के यस भी दे सकते हैं और पीके भी दे सकते हैं। पर अगर सेकंड का देखेंगे आप, सेकंड ही करने जाएंगे, सेकंड के सॉल्व करने जाएंगे, तो यहाँ पे अल्फा निकालेंगे 2 × 10⁻⁵ अपॉन 10⁴ 10 माइनस -4, तो क्या आएगा 2 × 10⁻1, डेफिनेटली शुड बी मोर देन 0.2 व्हाट, हो जाएगा है ना, √20। ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये वाली फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। यूज करना। आसान है, यस सर। ठीक है। अब क्या है, अब जो ऊपर समझाया उससे सफिशिएंट है बेटा, ये इससे ज्यादा नहीं पूछता, बिग एसिड से रिलेटेड नहीं पूछते ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश करिए, नहीं समझते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, बट समझने में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लिखा डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ पीएच कैलकुलेशन ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड, लिखा नेग्लेक्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ऊपर हमने वाटर लिया ही नहीं, ऊपर लिया क्या हमने वाटर, नो सर। तो वाटर हमने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, तो जो भी फॉर्मूले डिराइव हुए हमारे ये बिना वाटर के थे। देखिए नेग्लेक्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स H3O+, मतलब H3O+ एसिड से 10⁻⁶ से ज्यादा मिल रहा होगा, तो वाटर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो Ha+H2O गिविंग H3O+, वही चीजें लिखी है। अब यहाँ पे केसेस है, सिर्फ ये बस थोड़ा नया है, अगर K लेस देन C हो, अगर K हमारा लेस देन C हो और CK मोर देन 10⁻12 हो, तो अल्फा क्या ले लेंगे, 0। दो चीजें देखो, यहाँ पे दो बात समझने की कोशिश करिए, K लेस देन C का मतलब होता है अल्फा 0, और CK 10⁻12 का मतलब होता है, नहीं, CK 10⁻12 का मतलब होता है नेग्लेक्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। यही आपकी लर्निंग हो गई इस नोट्स में, जरूरत नहीं पड़ती कभी, लेकिन दिमाग में रखिए, अगर ऐसा हुआ तो वो C गिवन रहेगा, K गिवन रहेगा, मल्टीप्लाई करिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो अल्फा स्क्वायर एक मिनट, कोई खास, ये कोई टफ नहीं है, बस थोड़ी एनालिसिस ज्यादा है बस। तो ऊपर की जो इक्वेशन है, ऊपर क्या इक्वेशन लिखा, अगर ये अप्रोक्सीमेशन कर दूं तो K क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इट बिकम्स व्हाट, सी अल्फा। C अल्फा स्क्वायर, फ्रॉम दिस अल्फा स्क्वायर बिकम्स व्हाट, K by C, होगा ना, यस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू K by C, then अल्फा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, K by C। दिस, तो K इक्वल टू क्या था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं, K by C, और 1 माइनस अल्फा क्या हो गई, 1, ठीक है ना। जब K बहुत कम हो C से तो अल्फा क्या ले लेंगे, 0। 1 जब CK मोर देन अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 1, अल्फा 0, 1 माइनस अल्फा 1, जब CK बहुत ज्यादा हो
किससे? 10⁻12 से। हेलो, जब सीके क्या हो 10⁻12 से ज्यादा हो तो हम क्या कर देंगे? वाटर को नेग्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? यस फॉर्मूला वही आ गई जो हमने ऊपर डिराइव किया था। लेकिन अगर के ज्यादा हो सी से, बेटा के क्या हो? ज्यादा हो सी से, और सी मोर देन क्या हो? 10⁻6 हो। के बहुत ज्यादा हो, फिर से देखिए लर्निंग क्या है। अगर के बहुत ज्यादा हो सी से तो अल्फा क्या ले लेंगे? 1 जब के लेस देन हो तो क्या हो? अल्फा क्या ले लेंगे? 0 जीरो। पर जब कंपेरेबल हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? और जब कंपेरेबल हो तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। रिकॉल करना, अगर सी 10⁻6 से ज्यादा हो तो वाटर की कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। यस था ना स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में? स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में क्या था? अगर सी मोर देन 10⁻6 मोर हो देन 10⁻6 है तो तो वाटर नेगलेक्ट को करते नेग्लेक्ट कर वाटर। देते थे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, बस थोड़ी सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा है, केस बना के लिखा है। तो यहाँ पे वीक एसिड को क्या मान लेना है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेना है। और H3O प्लस क्या बन जाएगा फिर? सी। क्योंकि अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली टूट जाएगा, और H3O प्लस क्या हो जाएगी? सी के बराबर। और अदर केसेस सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़े। नेक्स्ट पे देखिए, कंसिडरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स H3O प्लस, दैट इज H3O प्लस फ्रॉम एसिड इज व्हाट? लेस देन 10⁻6। तो एसिड से अगर H प्लस कम मिल रहा है, 10⁻6 से कम मिल रहा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? वाटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड याद है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर यस सी लेस देन 10⁻6 हो तो वाटर को लेते थे। सेम चीज यहाँ पे भी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाले H प्लस अगर 10⁻6 से कम हो तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट दी वाटर। तो सिमिलरली वीक एसिड से मिलने वाले H प्लस 10⁻6 से कम हो तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट दी वाटर। तो लिखा सी, लिखा सी माइनस सी अल्फा, लिखा H3O प्लस क्या लिखा? सी अल्फा प्लस एक्स लिखा। ए माइनस क्या लिखा? सी अल्फा लिखा। H2O H3O प्लस देगा, बिकॉज H2O नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इससे मिलने वाले एक्स हैं, बिल्कुल उसकी तरह कर रहे हैं जो पहले किया था। बट दिस टू आर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस है। तो यहाँ पे यस वाटर का भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो नेट क्या हो जाएगी? H3O प्लस फ्रॉम एसिड सी अल्फा है, H3O प्लस प्लस वाटर एक्स है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? दिस। और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होती है? जो कॉमन होती है उसका टोटल लेते हैं। तो के का फॉर्मूला लगा देंगे, के H3O प्लस इंटू एम अपॉन एच, लिखा। टी डब्ल्यू क्या होगा? H3O प्लस इंटू एच मैंने लिख दिया। अब यहाँ फिर से, इफ k is less than c and ck is less than 10⁻12, if k is less than c, k is less than c का मतलब अल्फा क्या ले लिया? अल्फा 0 अल्फा 0। तो k is c अल्फा प्लस एक्स, k क्या बन जाएगा? c अल्फा प्लस एक्स इंटू सी अल्फा अपॉन सी, है ना? यस और c को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये बन जाएगा। यस और kw क्या होती है भाई? लिख दिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो मिला सी के प्लस के डब्ल्यू इक्वल टू सी अल्फा प्लस एक्स इंटू सी अल्फा प्लस एक्स, बिकॉज सी अल्फा प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो सी अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा। यस दोनों को ऐड किया, सी अल्फा प्लस एक्स का स्क्वायर सी के प्लस के डब्ल्यू आ गई। सी अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू रूट अंडर सी के प्लस डब्ल्यू, और सी अल्फा प्लस एक्स था क्या? एस प्लस था, तो फॉर्मूला क्या मिल गया? सी के प्लस के डब्ल्यू। फिर
अगर K मोर देन C है, और K मोर देन C का मतलब क्या होता है? अल्फा इक्वल टू 1, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, यस स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। और C लेस देन 10⁻⁶ है, तो वाटर कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड में जब C लेस देन 10⁻⁶, तो अल्फा 1 हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में C लेस देन 10⁻⁶ था, H+ का फॉर्मूला क्या था? दिस वन, ये था ना, रिकॉल करो। यस बस ये फॉलो पुट कर देंगे। फॉर अदर केसेस नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ड्यू टू डिफिकल्टी इन सॉल्विंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन थे, ये दो इक्वेशन थे, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का क्वाड्रेटिक है, अल्फा का क्वाड्रेटिक है, तो देयर आर टू, दो ही वेरिएबल है x और अल्फा, पर x और अल्फा में लीनियर इक्वेशन नहीं है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। पर मैं आपको कहूंगा कि पहले आप इसको दिमाग में फिट करिए, ये वाली सिंपल वाला, नॉट डिटेल्ड वाला, सिंपल वाला फिट करिए। सिंपल वाला फिट कर लेंगे तो डिटेल वाला समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। समझ गए? यस ठीक है, इतनी कंप्लीट कर लीजिएगा नोटबुक में। इतनी समझ गए? इतनी कंप्लीट कर लीजिएगा। यस नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, डायबेसिक एसिड, ये सब अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। प्लीज रिवाइज करके आइएगा, हर क्लास में आपको रिमाइंड देता हूँ मैं, क्लास में स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में।